While we sit in the comforts of our home and plan our futures, there are millions like us in our country who do not even know if they're going to have a roof over them tonight. I am Shrija Pillai and I have brought to you a story about these unfortunate lives. Because as they say, life is a dream for the wise, a game for the fool, a comedy for the rich, and a tragedy for the poor. We come to cities in search of work. We don't own any lands in our villages. We don't have any source of income there. When we don't get work in the cities, we resort to begging. This was a story I heard repeatedly while I was trying to cover the lives of these deprived people. These people have been living in these plastic huts on the footpaths of my city Pune since the past 15 to 20 years. Every 8 to 10 days, people from the Pune Municipal Corporation come and take away their belongings and throw them away. Their demand is for them to leave the footpaths. But since these people literally don't have any other place to go, they come back to the same place and the cycle continues. Can we even imagine our homes being disrupted every 8 to 10 days? When asked if the government has done anything for them, this is what they had to say. जागा भेटली होती, सरकारने दिली होती. गेला आम्ही, पण तिथं असं कसं एकदम गरिबा माणसावर कुणी बी हत्या करायला लागलेत. कसं राहणार माणसं? आम्ही काय करत नव्हतं. आमच्या पोटासाठी इथं नाम पडायला लागलेलं आहे. म्हाताऱ्या माणसाला चालायला नाही येत. लेकरं बाळ जास्त झाले गळ्यामध्ये. आता एक माणूस चालून चालून किती करणार? ते आपल्या गौंडीच्या हाताखाली बिग लेबर मिस्त्रीच्या हाताखाली आम्ही गौंडी आहे. नाही, आम्ही करता आता भावतर बी आम्ही करता. इथं सगळे कामे धंद्यालाच जातात माणसं. आता पोरं गेलेले आहे सगळेच कामाला. तुम्ही संध्याकाळी येऊन बघितलं ना तर तुम्हाला सगळे 10-20 पोरं भेटणार. आणि संध्याकाळी मंडळी लोक सगळे कुणी डस्टबिन विकतात, कुणी आपला टिश्यू पेपर विकतात, कुणी काय करतात. हाँ, हकलले तुम्हाला मला. During my time there, I saw multiple people coming and distributing various food items and other necessities. Various NGOs and private parties donate food and basic necessities on a regular basis. Apparently, they receive chicken and rice every night from a man, and the interesting part, as they told me about this, was that the man does not click pictures or make videos of them. This made me realize that how these people also understand that their poverty is objectified for personal gains most of the times. यहाँ इतने झोपड़े गरीब लोग का यहाँ पे दान किया है किसी ने. कोई अच्छा दान करता है तो कोई बुरा दान करता है. तो इसमें यहाँ पे ऊपर वाले के सारे कुछ गरीब लोग को कुछ हुआ नहीं आज तक. जैसे वैसे ज रहते थे. लॉकडाउन में भी हुआ, पर गरीब लोग को बहुत दान किया है. और किसी ने अच्छा दिया तो किसी ने बुरा दिया है. तो उसी के लिए कारपोरेशन वाले ने देखा था कुछ, तो यहाँ के सब जन को उठा के चतुर सिंह आश्रम में फेंका गया था वहाँ पे. फिर वहाँ पे कारपोरेशन के तरफ से सब खाना आता था, नाना धोना सब वहाँ पे आता था. वहाँ से निकाल के वापस यहाँ पे रख दिया. बोलने लगे मुँह पे मास्क लगाओ. तो ये लोग लगाते मुँह पे मास्क लगाते यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गई. गड़बड़ होने के बाद सभी ने मास्क हटा दिया यहाँ से. किसी को दम की बीमारी थी, किसी को टीबी थी ना, तो वो सबने मास्क हटा दिया. और गरीब के लिए यहाँ कुछ अच्छा चल रहा है अभी. पहले से लॉकडाउन से पहले अभी अच्छा चल रहा हुआ है. The lockdown was a difficult period. There was no means of earning at all, and the Pune Municipal Corporation wanted them to leave the footpaths in order to control the spread of the virus. They were put into an ashram in one of the temples in the city for about 4 to 5 months. आपको कोरोना स्टार्ट होने के बाद सरकार ने क्या किया आपके साथ? फिर हमको उधर लेके गए, हमको थोड़ा दिन रखा. उसके बाद हमको थोड़ा नाश्ता चालू किया. नाश्ता में आलू और पोया में कच्चा आलू निकलता था और रोटी भी कच्चा आता था. उसके लिए हम थोड़ा महीना बड़बड़ा. उसके बाद थोड़ा खाना अच्छा लगा के देने लगा. फिर उसके बाद हम बाहर निकल गए
और उसके बाद हमने बोला ऐसा खाना लाने से वैसे हमको अच्छा राशन ला के दो, हम हमारा मना के खाएंगे। फिर हमको राशन ला के दिया। फिर उसके बाद दूध भी नहीं था, दूध भी नहीं चला था। फिर बच्चे के लिए दूध भी ला के दिया, बिस्किट को साबुन भी ला के दिया। फिर उसका खाना अच्छा नहीं होता था। हाँ, फिर एक दो दिन के बाद किसमें कीड़ा भी निकला, ज़्यादा दिन हो गया, फिर कीड़े निकलने लग गए। बाल भी निकला एक बार चावल में। अगला मैं बोलता हूँ। When it rains heavily, they have a difficult time protecting themselves from getting wet. Sometimes, strong winds end up destroying their houses and damaging their lives. Do you still think you have bigger problems? The main source of earning for these people is either begging or selling goods on traffic signals. However, they are not allowed to do either. A lot of times, the police puts them behind bars for this illegal conduct. They said that during such times, their drudgery becomes so severe that they have to resort to stealing. हम 20 साल से रह रहे इधर। हमारी परेशानी सिर्फ इतना है, मेरी परेशानी नहीं, ये सबकी परेशानी है। परेशानी में इतना परेशानी है, बारिश आता है तो उसमें रहने की, खाने की, पीने की आखा दिन भूखा रहना पड़ता है। बारिश आने के बाद ना तो कोई ला के देते हैं ना कुछ नहीं। हमारी परेशानी ऐसा है, बारिश आता है तो बहुत मुश्किल हो जाती है। ऐसे में भी सरकार लोग, कमेटी वाले, वो सब हमारा सामान उठा के लेके चले जाते हैं, सामान तोड़ देते हैं। पानी का, पीने का ये ड्रम लेके चले जाते हैं यार, बर्तन भी सब लेके चले जाते हैं हमारे। अरे हम मजबूरी काम धंधा करके खाते हैं। बोले तो कोई भिखारी का काम करता है, कोई बलून बेचता है, कोई सिग्नल पे धंधा करता है, कोई सिग्नल पे पैसा मांगता है। यही हमारी मजबूरी है। और बोले तो एक यहाँ पे कैसा है, 20 साल से रहते आ रहे, 20 साल से अभी तक कुछ हमारा कोई इलाज नहीं हुआ है हमारे लिए। आज तक तो कोई हम लोगों को ये पूछा नहीं तुम इधर क्यों रह रहे हो, क्या रह रहे हो। अभी मेट्रो बन रहा है, मेट्रो की वजह से ये गोर गरीब को हटा देंगे, गोर गरीब कहाँ रहेंगे। गांव में हमारा कुछ नहीं है, ना खेती है, ना वाड़ी है, ना कुछ नहीं। The main problem that these people are facing is that they do not own any personal identification, which gives them no right whatsoever. Because under the Modi government, you need an identity card for everything. And since they don't own any, life becomes extremely difficult. They even told me that they consider Sonia Gandhi as their goddess, because under her government, things were much easier and they were cared for. It goes without saying that being a woman in these situations is tougher. They absolutely have no facilities. They have to take baths in the open, fetch water from a public tap that everyone warns them not to drink from, walk half a kilometer to use bathrooms. It becomes even tougher when they are experiencing their monthly menstrual cycles. A woman told me that since she does not have any identity card, she wasn't admitted into a hospital for her delivery, and she has ended up delivering all her 3 children on the footpath. She even went on to tell me that when she delivered her 3rd child, she cut her own umbilical cord. आपको कितने बच्चे हैं? मेरे को 2 लड़की है, ये तीसरा बच्चा है। अभी तीसरा होने वाला है। हाँ। आप कितने महीने प्रेग्नेंट हो? मैं अभी मेरे को 5वां महीना है। अच्छा, आप हॉस्पिटल गए हो? नहीं। एक भी बार नहीं। तो आप डिलीवरी कहाँ पे करने वाले हो? और मेरे को नाम डालने का है। किधर? वो ससुर में। और ससुर में मतलब नाम डालना है, मतलब आपके पास आधार कार्ड वगैरह है? नहीं है। कुछ भी नहीं है? तो वो लोग देंगे आपको? अभी वो मेरी बुआ के पास है, उसके पास है, करवाना पड़ेगा मेरे को। अच्छा, किसी और के आधार कार्ड पर जा सकते हो आप? अभी उसके भी नाम पे होता है क्या नहीं होता है क्या मालूम। अच्छा, और आपको कितने तकलीफ क्या क्या होती है? खाली मेरे हाथ पाँव खाली दुखते हैं बस। और कोई तकलीफ नहीं है? कितने साल के हो? 20। आपको कितने बच्चे हैं? एक ही है, 2 आता, एक गुजर गया।
एक ही है अभी। तो आपकी डिलीवरी कहाँ पे हुई थी? ये इसके टाइम सुसुन में गई थी, और दूसरी वाली घर पे हुआ था। तभी वो गुजर गई? हाँ वो- नहीं, तभी नहीं, 3 साल की हुआ तभी वो गुजरी। अच्छा, और यहाँ पे डिलीवरी यहाँ पे मतलब कितने लोग करते हैं ऐसे? कोई कोई इधर करते हैं, कोई कोई पैसा, कोई कोई ऐसा करता है, किसके पास पैसा रहेगा तो दवाखाने में जाते हैं, किसके पास पैसा नहीं रहेगा तो इधर ही डिलीवरी होती है। घर पे हाँ बहुत लोग करते हैं। हाँ, ऐसा बहुत जने के पास है, पर क्या करने का, पैसा रहेगा तो दवाखाने में जाते हैं, तो दवाखाने में नहीं जाते, इधर ही डिलीवरी होती है। आप काम क्या करते हो? हम काम नहीं, ऐसा बलून है बेच के हमारा कौन सा ही टाइम पास निकाल देते हैं। फुगारा बेचते हो, 10-20 रुपये बोलेगा तो 10 में देने का, 15 का दो, 20 का दो, ऐसा दे देते बलून। पढ़े हो आप? हाँ नहीं आपके बच्चे? नहीं, वो भी नहीं पढ़ते, वो पढ़ाने के जाते हैं तो बोलता है ओला ओला, उसके लिए हम पढ़ाते नहीं हमारे बच्चे लोग को। कितने साल के हो? 23। अच्छा, तो और कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे होते थे, 2 बच्चे गुजर गए मेरा। कैसे गुजर गए? एक बीमार था उसीलिए, एक डिलीवरी के टाइम। डिलीवरी घर पे हो रही है? हाँ और आप बाकी आपका टॉयलेट के लिए आप किधर रहते हो? ओ उधर बाथरूम में जाते हैं, उधर। दूर है यहाँ से? हाँ थोड़ा दूर है। Their leader, who they asked me not to name, apparently called them to her office to give them ration cards. After clicking pictures with them holding the cards, she kept the cards with herself. When I tried to contact her, she remained unavailable for any comment. They say poverty is not being without money, but being without hope. And hope is what I saw was diminishing in the eyes of these poor people. But even without hope, their faces were still smiling and their hearts were filled with love. And that was the only reason that I could bring to you this story.